Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। प्रत्येक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड और संबंधित विषयों पर आपके प्रश्न सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Finance Minister Nirmala unveils structural reforms for 7 sectors in the 5th tranche of Atmanirbhar Bharat package. Foreign investors pour in over 17,000 crore rupees into Indian equities in the first fortnight of May. And another investor, General Atlantic, picks up 1.34% stake in Reliance Jio for nearly 6,600 crore rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5वें चरण की घोषणा में 7 क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की। विदेशी निवेशकों ने मई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली। और रिलायंस जियो में एक और निवेशक जनरल एटलांटिक ने लगभग 6,600 करोड़ रुपए में 1.34% हिस्सेदारी खरीदी। Market Mantra. Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled the final tranche of financial stimulus and policy measures for various sectors to help build a self-reliant India under the Atmanirbhar Bharat campaign today. Prime Minister Narendra Modi had on Tuesday in his address to the nation announced a special economic package equivalent to 10% of India's GDP, amounting to 20 lakh crore rupees. Addressing a media briefing in New Delhi, the Finance Minister outlined structural reforms with focus on 7 areas of Manrega, health and education, business during COVID, decriminalization of Company Act, ease of doing business, policy related to public sector units, state government and resources related to it. Ms. Sitharaman said under the Manrega scheme, an additional 40,000 crore rupees will be allocated for employment generation in the rural parts of the country. She said this will help to generate nearly 300 crore person days to provide relief to the migrant workers. In another major announcement, Ms. Sitharaman said that the government will chalk out a coherent policy for the public sector companies. She asserted that at least one public sector enterprise, PSCs, would continue to remain in every strategic sector even after allowing private companies. The Finance Minister added that the maximum number of enterprises in strategic sectors will be limited to 4. She informed the government will soon notify the list of strategic sectors requiring the presence of PSCs.
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को प्रमुख राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की न्यूनतम सीमा बढ़ेगी। पहले ये 1 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इससे देश के छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। इसे जल्दी ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक कोविड-19 से संबंधित मामलों में दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया निलंबित रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने के लिए तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी छोटे मोटे उल्लंघन को अपराध नहीं माना जाएगा, जिससे न्यायालयों में मामलों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से कारोबारी सुगमता में भारत की वरीयता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। Dhiren, quickly your comment on the tranche that the finance minister has announced, the 5th tranche of Atmanirbhar Bharat package. These are quite practical things in terms of, immediate benefit to the businesses, not too many. But in terms of providing convenience, yes it is. And it could be long run one. Okay. और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, नवीन दिल्ली से। नवीन, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को है ना एक तो पूछना था, टैक्स बचाने के लिए किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना ठीक रहेगा, और दूसरा सर मेरे को पूछना था कि किसी अच्छे मल्टी कैप फंड का नाम प्लीज बताइए जिसमें कम से कम 7 से 8 साल के लिए निवेश किया जा सके। जी हाँ, टैक्स सेविंग फंड अगर मुझे लिस्ट करना हो तो आदित्य बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ, एक्सिस का लॉन्ग टर्म, इन्वेस्को का टैक्स प्लान, मिराई एसेट का टैक्स फेवर, इनमें से किसी एक या दो में आप इन्वेस्ट कीजिए। पर इसके पहले देख लीजिए कि ये जो अब टैक्स के नियमों में बदलाव है कि आपको पहला वाला स्कीम लेना है कि दूसरा वाला जिसमें कि कोई किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, डिपेंड करता है आपकी आमदनी पे, लेकिन ये टैक्स सेविंग फंड है। मल्टी कैप फंड गिनाना हो जो मुझे पसंद है तो एक्सिस का फोकस्ड फंड या फ्रैंकलिन का फोकस्ड इक्विटी या कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप या इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। Joining us now from Mumbai, we have Alok with us. Alok, we welcome you. Please ask your question. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो डीमेट अकाउंट होता है वो क्या हम एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इसमें, अलग अलग बैंक्स में? और दूसरा क्वेश्चन था सर, ये ऑनलाइन जो ओपन करना है डीमेट अकाउंट, तो वो किसमें ओपन करना अच्छा रहेगा? जी हाँ, एक तो कि आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट आप अलग अलग जगह खोल सकते हैं, इस पे कोई रुकावट नहीं है। और डीमेट अकाउंट आप नॉर्मली जब आप शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकरेज अकाउंट के साथ ही डीमेट अकाउंट खुला जाता है, तो ब्रोकर का चुनाव कीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर हैं जो बिना कोई ब्रोकरेज के आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सुविधा देते हैं। जीरोधा है या और भी बहुत सारे पॉपुलर बड़े ऑनलाइन डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जहां पे ये सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, और उनके जरिए ही आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो जहां आप जिस ब्रोकर के साथ खाता खोलें वही आपका डीमैट अकाउंट भी खोल देगा। अगले कॉलर है दिल्ली से नंद हमारे साथ जुड़े हुए। नंद जी, सवाल पूछिए। Question to Mr. Dhiren, this Franklin Templeton, which schemes were stopped. So when they are likely to open, any update on that? When we will get our money? If you can please highlight, I think a lot of investors are waiting for that. Yes. Franklin Templeton has closed this fund, so they are not going to open for investors to invest. But investors, they have given a timeline for different funds when the money. So just check into your mail, the mail which you have email ID which you have provided while making those investments. And for the 6 different funds, they have given a timeline in terms of what percentage of money they are likely to get. Besides that, the company has communicated on 3 occasions. The last one was, they sent a mail on Friday, where they have set up they have appointed an advisor. They are initiating the voting procedure. And so in one of the funds, they said that, up to 10% of the money should be returned in another month. I would say that, and they have appointed an advisor to just accelerate, just to speed up the mechanism of returning investors' money as soon as possible.
Going by the timeline that they have provided, it looks like, a very small part will come in next 2-3 months, and a reasonable part will come by the year end. But it entirely depends. They have also given a caveat. They have also given a hope that if they are able to sell and, if the market normalcy is restored, and if they are able to realize the money well before that, then they will try and accelerate it. So they have given a timeline. Go through the mails, please. अगले कॉलर हैं दिल्ली से रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, सवाल पूछिए। What will be the effect of the stimulus on stock market, and what should be done in case of delisting by a company, by a retail investor, if the cost of acquisition of share is much higher than the delisting price? I'm not very hopeful about the stimulus having an immediate impact on the market, because it is not. And right now the crisis we are facing is the lockdown and closure of the business temporarily, and how long this lasts, we don't know. So I'm not very hopeful. The market has also reacted in a fairly unusual way. Someday and they are unable to decode in terms of what will happen. But the reformist move initiated alongside the stimulus, because the fiscal impact of the stimulus is not that significant. It is primarily a relief measure for individuals, for companies as well. But it is not a very significant thing. But the reformist initiative, reform initiatives, they are far-reaching, and they will not have an immediate impact. But I think over a period of time, these things will play out very favorably for the businesses. Many of the things which could have, which would have taken longer, they have been streamlined. Particularly in some of the sectors, it is, which have nothing to do with market, particularly the agriculture sector, is quite significant. So I would say that market I don't have, much of an expectation in terms of this stimulus really impacting the market mood. About what can you do about a company which is delisting and your acquisition price is much higher? Do nothing, and you can curse the company. And it is very investor unfriendly for a company to be delisting simply because the price is very low, and most investors owning the shares, their acquisition price being much higher than today's. From Bihar, we are joined in by Abhinav now. Abhinav, we welcome you. अभिनव, सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि वो मल्टी कैप और सर लार्ज एंड मिड कैप में दोनों में कौन अच्छा विकल्प है, और सर दोनों का एक कुछ अनुशंसा करते तो बेहतर होता। धन्यवाद। मल्टी कैप फंड हर बाजार के हर भाग में लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है। लार्ज और मिड कैप फंड डोमिनेंटली लार्ज कैप होता है और थोड़ा मिड कैप भी होता है, वहां स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं होता है। तो आज के नजरिए से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लार्ज और मिड कैप फंड अगर बाजार में कभी कोई सुधार आता है तो उसमें ज्यादा फायदा होगा, या लार्ज कैप हमेशा बाजार के किसी टर्न अराउंड को लीड करते हैं। लेकिन लंबे समय तक निश्चिंता से अगर धीरे धीरे लगाना है पैसा, तो मल्टी कैप का ही चुनाव करें, जहां पे फंड मैनेजर को पूरी आजादी होगी कहीं भी लगाने के लिए। कुछ अच्छे मल्टी कैप अगर मुझे गिनाना हो तो मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप, या पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, या एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी, या कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। Arun from Delhi joins us now. Arun, we welcome you to Market Mantra. Hello. जी, सवाल पूछिए। This how is this compounding interest is related to NAV? The NAV, all returns are calculated in compound interest terms so that you are able to compare it. When you are told that, when you see that your savings bank interest rate is 4%, and when you see that a return of a mutual fund is 7% in a liquid fund, it is comparable. How it relates to NAV? NAV actually grows depending on. So
compound return is basically a method of computation. If the return is for 2 years, 3 years, then it is assumed the same formula is applied. If a fund's NAV moves from 10 rupee to 11 rupee, it will be 10%. Next year it has to become 21 rupees for it to actually generate to have generated a 10% return. So compound return assumes that the interest is added to the principal. That's the basic arithmetic, which we learn in class 8 or 10th. But the NAV actually, mutual funds do not give you a return in terms of percentage per annum in a fairly stated way. It is all dependent on the appreciation of the underlying investment. So, if a fund has invested in a bunch of, a set of stocks or bonds, they appreciate every day. And depending on, when we are calculating return, then we are picking different values. Today's values, compare it with 1 year ago, calculate the return, or today's value, compare it with a NAV 5 years ago, and then calculate the return. And the return is calculated in a manner so that you can compare it across any asset class or any investment. So that's it. NAV, mutual funds do not promise any return. It depends on the appreciation or depreciation of the underlying value, and based on that, the NAV is calculated and returns are calculated based on the change in the NAV movement. अगले कॉलर भी दिल्ली से ही हैं, योगेंद्र हमारे साथ. योगेंद्र जी, सवाल पूछिए. मैडम नमस्कार. जी नमस्कार, सवाल पूछिए. मैडम ऐसा है, ये जो 20 लाख रुपए 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट जी, हम 20 लाख करोड़ जी एम्प्लॉइज को तो तनख्वाह तो दे नहीं रही, ये पैसा अलमारी में ही है क्या? Even we didn't understand the rain. मुझे भी नहीं समझ में आया. स्पष्ट नहीं था इनका सवाल. अगले कॉलर को लेने से पहले एक महत्वपूर्ण खबर पर नजर डाल लेते हैं. पिछले 2 महीनों के दौरान शेयर बाजार से विशाल राशि निकालने के बाद विदेशी निवेशकों ने मई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली. कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव से शेयर बाजारों से अप्रैल के दौरान 6,883 करोड़ रुपए और मार्च में 61,973 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि निकाली गई. इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में 1,820 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था. डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक 17,363 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का शेयर बाजारों में निवेश किया है, लेकिन मई में ही अब तक एफपीआई ने ऋण बाजार से 18,355 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली है. और अब दिल्ली से रविंदर हैं हमारे साथ. रविंदर जी नमस्कार, सवाल पूछिए. हेलो जी, सवाल पूछिए. Good evening, Dhirendra ji. This is Colonel Ravinder Singh. I just want to ask, I am 78 and I had a PPF going for 25 years or so. And now it is matured on 31st of March this year. And should I continue with this PPF, or is there a better option for me to put this money anywhere else? No, for the kind of, if you are very conservative and you have run this PPF for this long, this is a reasonable alternative in terms that you earn 7.1% return. You can carry on. All the interest that you earn on this is tax-free. So on a post-tax basis, this is a good investment if you want to carry on. Okay, from Ghaziabad, we are joined in by Gaurav. Gaurav, we welcome you. And I had Gaurav, can you hear us? Yes, good evening. Good evening. Market Mantra team and good evening, Dhirendra ji. सर मेरा क्वेश्चन है, ये अभी इंटरेस्ट रेट कम होंगे या कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ये सब पैकेज की वजह से, क्या इसमें हमें ऑल सीजन बॉन्ड या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा? मुझे ऑल सीजन बॉन्ड में काफी फायदा हुआ था, 11-12% पर बैठा था मैं, काफी पहले लगा रखे थे. तो क्या लिक्विड फंड में अभी भी मुझे लगाना चाहिए? इज इट गोइंग टू बी ओके फॉर एटलीस्ट जो ऐसा मुझे चाहिए नहीं है इमीडिएटली साल 2 साल में उसको लगा के नुकसान तो नहीं होगा फ्रैंकलिन के तरफ? थैंक यू.
लिक्विड फंड में मुझे नुकसान की उम्मीद नहीं लगती, और खासकर जिस तरह से लिक्विड फंड को डिजाइन किया गया और उसके डिजाइन को या उसके ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क को और टाइटन किया गया है, मुझे लिक्विड फंड के बारे में उतनी चिंता नहीं है कि वहां पे उस तरह का नुकसान की संभावना है। पर मुझे लगता है, साथ में मुझे ये भी लगता है कि ये जो ऑल वेदर फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड या दूसरे तरीके के बॉन्ड फंड है, जहां पे आपको मुनाफा हुआ था क्योंकि ब्याज दरों में कमी हुई है, वहां पे मुनाफा कमाने से या ज्यादा रिटर्न का लालच ना करें, क्योंकि ये जो अभी बाजार का खासकर इकोनॉमी की जो स्थिति हुई है उसमें बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत होगा। जब भी आप किसी बॉन्ड फंड में पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर आपके पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये उम्मीद होती है कि समय पे वो कंपनी अपना प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट टाइम पे दे पाएगी। और ये जो स्थिति है, ये इसका आकलन रेटिंग के आधार पे किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां जिनका की रेटिंग अभी अच्छा है और उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, उसकी स्थिति खराब हो सकती है। और ये स्थिति अलग अलग कंपनियों की कैसी होगी, कितनी खराब होगी और उसमें आपका पैसा कितना लगा हुआ है, तो हो सकता है कि रिटर्न फिलहाल अच्छा लगे, लेकिन आपका कुछ पैसा फंस जाए या उनका रेटिंग डाउनग्रेड हो, या कई बार कंपनियों को पैसा देने में दिक्कत हो। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत इस क्राइसिस की शुरुआत के पहले ही हो चुकी थी। बल्कि आप देखें कि ये डेट फंड में जो लोगों का छोटा मोटा पैसा डूबने और फंसने का जो सिलसिला है, वो अक्टूबर से ही शुरू हो गया था आईएलएफएस के क्राइसिस के बाद। मुझे नहीं लगता है कि आईएलएफएस जैसा क्राइसिस लिक्विड फंड में दोबारा होना चाहिए, उसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन ज्यादा रिटर्न की लालच में किसी अग्रेसिवली डेट फंड में अभी न लगाए। ये उचित समय नहीं है डेट फंड से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने की। मेरी सलाह में लोगों को अभी केवल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, वो भी बहुत हाई क्वालिटी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ गुरुग्राम से प्रवेश जी, नमस्कार, सवाल पूछें। या गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, आई नीड योर एडवाइस ऑन डीएसपी इक्विटी फंड प्लीज। DSP equity fund. What do you want to know? I just want to invest in this fund for long-term periods, just to create wealth. Okay. This is a very old fund. It was launched in April '97. 10-year return, it has given about close to 9%, and the return, this fund has struggled over a long period of time. And right now it is looking like an above average fund. So it's a good, well diversified fund worth investing. धीरेन्द्र जी, अभी जो हम एफपीआईज की हमने जो स्टोरी पढ़ी, उसमें 2 महीने के बाद मई के दौरान फिर से एफपीआईज नेट इन्वेस्टर्स बन गए हैं, लेकिन हमारे शेयर बाजार में डेट मार्केट से उन्होंने पैसे काफी निकाले हैं। जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे हमारे लास्ट कॉलर को, वही एक रीजन है डेट मार्केट पर? क्या कुछ भरोसा अभी कम हो गया है इन्वेस्टर्स का? नहीं, एफपीआई के पैसा निकालने का कारण क्योंकि उनका जो लगाने का यूनिवर्स है, वहां पे वो समस्या नहीं है जो भारतीय डोमेस्टिक डेट फंड इन्वेस्टर्स की है। वो कॉर्पोरेट डेट में ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, उनका ज्यादा पैसा सरकारी बॉन्ड्स में लगा रहता है। उनका पैसा लगाने का कारण है कि रुपए का डिप्रिसिएशन, क्योंकि अगर वो जो पैसा लाए थे और आज जो पैसा ले जाएंगे, वो करेंसी डिप्रिसिएशन से उन्हें मुनाफा हो गया है और उस मुनाफे को रियलाइज करना चाहते हैं। तो उनका जो डायनामिक्स है, उनका जो फ्रेमवर्क है, वो अलग है। और मुझे लगता है कि जो भारत में ब्याज दरों में कमी आ रही है, उसके वजह से उनका रुझान यहाँ कम होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्याज दरें काफी थी और विदेशों में नहीं थी, या विदेशों में ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो वो जो डिफरेंशियल था, वो इस उम्मीद में लाते थे कि अगर करेंसी डिप्रिसिएशन होता भी है, उसके बावजूद उनके लिए कुछ मुनाफा बचेगा, जिसका कि मार्जिन काफी कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड शायद थोड़े समय तक ऐसा ही रहे। From Chennai, we are joined in by Hari Krishnan. Hari, we welcome you. Hello. जी, सवाल पूछें. Please ask your question. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Hello. Yes, please go ahead and ask your question. Yes, sir. I opened the 2 mutual fund, that is SBI Focused Equity Fund, monthly 3,000 on SIP, and another one is Sundaram Balanced Fund Advantage, 2,000 rupees monthly SIP. Is it okay? Yeah, both are good funds, and make sure that you are investing for a few years, at least 4 or 5 years. And one is a fairly aggressive
and high performing the SBI focused fund, a focused equity fund. And Sundaram Balance is still, is relatively new, but evolving, but the balance fund as usual tend to provide you far greater stability. So both are good funds if you are first time investor, but make sure that you are doing only SIP and you have at least 5 years time frame in mind. और अब उत्तर प्रदेश से संतोष हैं हमारे अगले कॉलर। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो, सवाल पूछिए जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे मेरा सवाल है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां डिफॉल्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो ऐसा क्या हमारा जो डीमैट अकाउंट जहाँ जिस ब्रोकर के पास होता है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो हमारे होल्डिंग का क्या होगा, जो स्टॉक रहते हैं उसकी? आपका जो स्टॉक है उसका उस ब्रोकर के डिफॉल्ट करने से उस पर कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। केवल ध्यान दें कि आपने ब्रोकर को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है। अगर आप खरीद बेच करते हैं तो हर बार आप एक डिलीवरी स्लिप पे साइन करते होंगे, तो और अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देते हैं तो आपका जो डीमैट अकाउंट है उसका ब्रोकरेज अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। ब्रोकर को केवल ये आजादी है कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर जमा हो जाए, और जब आप कोई शेयर बेचते हैं तब आप उस पर्टिकुलर शेयर को आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट करने का आप ऑथराइजेशन देते हैं। तो अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है तो उस ब्रोकर को कोई अधिकार नहीं है कि आपके खाते को, आपके डीमैट अकाउंट को छेड़े। अगर कोई ब्रोकरेज बंद हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ शेयर बिल्कुल आपका रहता है। और जैसा आपको पता होगा कि 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, और सारे देश के ब्रोकर उसके पार्टिसिपेंट हैं। तो आपका पैसा असल में NSDL के डिपॉजिटरी अकाउंट में या NSDL या CDSL के डिपॉजिटरी अकाउंट में होगा, और अगर ब्रोकर बंद हो जाता है तब भी ये आपका बैंक का खाता है, और उस तरह से ये सिक्योरिटीज का खाता है, बैंक के खाते की तरह। और ब्रोकर के दिवालिया होने से आपके डीमैट अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Shrikant from Thane joins us now. Shrikant, we welcome you. Hello. Please go ahead and ask your question, Shrikant. सर, मेरे पास फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड ग्रोथ फंड का इन्वेस्टमेंट है। जी। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड ग्रोथ फंड। जी। तो ये सर मैं कंटिन्यू करूं या इसमें से बाहर निकलूं? नहीं, फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड फंड बहुत पुराना फंड है, और अगर आप इस वजह से सोच रहे हैं कि आपको इसमें से पैसा निकाल लेना चाहिए क्योंकि फ्रैंकलिन के डेट फंड्स में कोई दिक्कत हुआ है, तो उस वजह से इसमें नहीं निकालना चाहिए। हाँ, तुलनात्मक तौर पे देखें तो फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड फंड की तुलना में ज्यादा बेहतर टैक्स सेविंग फंड है। इस वजह से भले ही आप इसके बारे में पुनर्विचार करें कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अपने आप में ये एक ठीक ठाक फंड है, बहुत लंबा हिस्ट्री है, और ये डेट फंड की क्राइसिस की वजह से यहाँ से पैसा निकालने की न सोचे। हाँ, दूसरे टैक्स सेविंग विकल्प ज्यादा बेहतर फंड आज के दिन लगते हैं। We'll just take the third headline story at this point of time. After Facebook, American private equity firm General Atlantic has picked up 1.34% stake in Reliance Jio for 6,598.4 crore rupees. The investment in Jio platforms will be GA's largest investment in Asia. Reliance Jio has raised nearly 67,195 crore rupees from investors. और कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो हमें कॉल्स का सिलसिला भी यहीं खत्म करना होगा। धीरेन्द्र जी, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू धीरेन्द्र। थैंक यू। श्रोताओं, ये थे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार, जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman unveiled structural reforms for 7 sectors in 5th tranche of Atmanirbhar Bharat package. Foreign investors pour in over 17,000 crore rupees into Indian equities in the first fortnight of May. And another investor, General Atlantic, picks up 1.34% stake in Reliance Jio for nearly 6,600 crore rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.